Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to cover content related to isomerism. Isomerism की दो types, structural isomers and geometrical isomers. We'll cover all those things जो कि structural isomerism में आती हैं, and we'll only cover the geometrical isomerism की type जो कि cis-trans isomerism है. Although we have optical isomers also in geometrical isomerism, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे because that is not the content of MDCAT syllabus. So start करते हैं structural isomerism और geometrical isomerism में cis-trans isomerism को. Let's move to the light board. This is Saad Shahid, and in this video we are going to cover content related to MDCAT. Isomerism का topic है and we'll cover the content of isomerism. So beta, what is isomerism? Iso means same. So beta, same क्या होता है? Isomer, and ism means phenomena. So we have same molecular formula. Those compounds which have same molecular formula, ठीक है? Different compounds हो, they have similar molecular formula. Beta, they are actually isomers of each other. अगर हम structural isomerism की बात करें, so we will have same molecular formula but different structural formula. लेकिन अगर हम geometrical isomerism की बात करें, we will have same molecular formula as well as same structural formula. ठीक है? तो बेटा, अगर हमने isomers को पढ़ना है, it means these are the compounds which have same molecular formula. बेटा, molecular formula same हमेशा होएगा, हर टाइप में होएगा, ठीक है? But structure is different. It is not in every case. We have two types here जो हमारे content में है, structural isomerism and geometrical isomerism. Geometrical isomerism की टाइप जो हमने डिस्कस करनी है, that is cis-trans isomerism. We will discuss only cis-trans isomerism, although A levels में optical isomers का भी concept आता है, but बेटा that is not relevant with MDCAT content. तो ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. We'll only focus over cis-trans isomers. We'll only discuss this one, cis-trans isomerism. We will not discuss optical isomerism. उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में. ठीक हो गया? We'll not discuss the further detail of different isomers जो कि geometrical ही होते हैं. For example, EZ isomers, anti और syn isomers. बेटा, ये different types जो होंगी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट MDCAT कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है? सो आइसोमेरिज्म, those compounds which have same molecular formula, that is the actual definition of isomers. First we'll discuss the structural isomerism. On the basis of different structures ये isomers arise होते हैं. For example, we have chain isomerism that arises due to the difference in the chain. We have straight chain molecules, we have branch chain molecules, we have closed chain molecules. तो different chains होती हैं आपके पास, ठीक है? तो बेटा chain isomerism में हम अगर बात करें straight chain और branch chain हमेशा यूज होएगा. Straight chain compounds and branched chain compounds. These are isomers of each other. Straight chain और branched chain. For example, बेटा butane की अगर हम बात करते हैं, butane is C4H10. We have 4 carbons, 1, 2, 3 and 4. All the carbons are having hydrogens. अभी hydrogens यहाँ पे कितने हैं? We have 10 hydrogens. 2 and this carbon is having 3 carbons.
So overall this compound is containing 4 carbons and 10 hydrogens. So बेटा अगर इसी स्ट्रेट चेन को मैं ब्रांच में कन्वर्ट कर दूं, ब्रांच क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए. ब्रांच एल्केन्स क्या होती हैं? इफ सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड विद एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो वो बन जाती है बेटा हमारे पास ब्रांच. सो इन दिस केस अगर हम 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख दें, दैट इज प्रोपेन, एंड दिस इज इट्स सेंट्रल कार्बन. सेंट्रल कार्बन इज फर्दर अटैच विद एनी ग्रुप, एक कार्बन के साथ अटैच कर दिया, दैट इज CH3. तो बेटा दिस इज कॉल्ड ब्रांच. ठीक है, अ ब्रांच, द अल्काइल ग्रुप इज अटैच विद द स्ट्रेट चेन. तो बेटा ये बन गई है ब्रांच आपके पास. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन. दिस इज कार्बन, कार्बन इज हैविंग 1 बॉन्ड, सो वी हैव टू मेक 3 अदर बॉन्ड्स जहां पे हाइड्रोजन्स होंगे. दिस कार्बन इज हैविंग 3 बॉन्ड्स राइट नाउ, सो वी हैव टू अटैच 1 हाइड्रोजन विद दिस टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन. Similarly, this is the carbon, we have to attach 3 hydrogens with this. So बेटा यहाँ पे we are observing कि 4 ही कार्बन्स हैं, 3 hydrogens, 3 hydrogens, 3 hydrogens and 1 hydrogen. So we have 10 hydrogens as well. So these both compounds are having C4H10. They have same molecular formula but different structural formula. You can see the arrangement of atoms different in both structures. So बेटा ये बता रहा है कि चेन आइसोमर्स है. Similarly अगर आप पेंटेन की बात करते हैं, पेंटेन स्ट्रेट लाइन में अगर आप लिखते हो, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 and 5 straight line, then I'll convert 1 carbon into the chain. 1 2 3 4 carbons in a straight line and 1 carbon is in the branch. Just central carbon के साथ अटैच करना होगा. It totally depends upon you. यहाँ पे कार्बन लगाते हो या यहाँ पे कार्बन लगाते हो, ठीक है, because the compound would remain same, उसका नेम सेम रहेगा. सो मैं यहाँ पे कार्बन को एक अटैच करवा देता हूँ. बेटा वैलेंसीज कार्बन की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कार्बन की वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है. This carbon would have 3 hydrogens, this carbon would have 2 hydrogens, this carbon would have 2 hydrogens, इस कार्बन के भी 2 hydrogens होंगे, and this carbon would have 3 hydrogens. So total 5 carbons है आपके पास, but you will have 12 hydrogens. Similarly, in this case, you will have 3 hydrogens here, 3 hydrogens here, 3 hydrogens here, and 2 hydrogens here and 1 hydrogen here. So total 12 आपके पास इस केस में भी हो गए. Now I will shorten this chain, 3 straight line में लिख देता हूं और 2 branches central carbon पे लगा देता हूं. 1 carbon on this side, 1 carbon on this side. Sometimes student ask कि सर ये कार्बन यहां पे ही लगा देते तो क्या होता? तो बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाती जो कि 4 कार्बन्स की होती और एक ही ब्रांच होती. दैट वुड बी द सेम मॉलिक्यूल. तो इसलिए 2 अलग अलग ब्रांचेस लगा दी, CH3 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 CH3. सो बेटा C5H12 यहां पे भी हो गए. तो ब्यूटेन इज मेकिंग हाउ मेनी आइसोमर्स? 2. पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर. अगर हेक्सेन का पूछ लिया जाता है तो बेटा इट हैज 5 आइसोमर्स. हाउ मेनी आइसोमर्स? 5 हेक्सेन के. हेप्टेन के कितने होंगे? इट वुड हैव 9 आइसोमर्स. बेटा अब डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे कार्बन चेन बढ़ती जा रही है. इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो वी हैव अ फॉर्मूला जिससे आप अल्केन्स के तमाम चेन आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. अल्केन्स के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं यू कैन इजीली मेक बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मैंने आपको बताया कार्बन 5 के कितने हैं, पेंटेन के वी हैव 3 आइसोमर्स. सो लेट्स सॉल्व by using this formula. This is the formula we can use to find out the isomers of alkanes for the alkanes. Remember this one, ठीक है? This is the formula. 2 पेंटेन के अगर आप देखना चाहते हो, for the pentane, बेटा 2 की पावर that is 5.
यहां पे 5 कार्बन वाले हम बात कर रहे हैं ना, पेंटेन इज हैविंग 5 कार्बन, सो 2 की पावर 5, 5 minus 4 that is 1 plus 1, so answer is 3. So pentane has 3 isomers. So बेटा ये जो फार्मूला है that is only applicable for the first 7 alkanes, only for first 7 alkanes. Methane, ethane and propane are not having any extra isomer, उन्हीं का एक एक स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, they would not have any structural isomers, ठीक है. Propane के बाद we have butane, butane has 2, pentane has 3, hexane has 5 and heptane has 9 isomers. ये just 7 तक एप्लीकेबल होएगा. अगर 8 वालों को देखना है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होएगा बेटा. अगर ऑक्टेन के हमने आइसोमर्स को कैलकुलेट करना है, वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन 2C-4, that is the same formula but we have to add plus 2. that is the formula for octane. और नॉनेन के लिए we will use the same formula लेकिन प्लस 3 कर देना है आपने, C-4 प्लस 3 कर दें, ठीक है. और डिकेन it has 75 isomers. इन तमाम आइसोमर्स को ऐड कर दो, you will get the total isomers of decane. लेकिन decane का याद रखने की ज़रूरत नहीं है. We have the formula for decane as well. 2 की पावर C-4 plus 1 plus n, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला सेम होएगा, प्लस n, यानी कि 10 कार्बन्स हैं तो प्लस 10 कर देंगे हम, ठीक हो गया. सो दैट वुड बी द फॉर्मूला फॉर डिकेन. डिकेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने होते हैं? बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाए वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट 10 आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स. होप सो ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व द MDCAT MCQs. आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे. सो नाउ वी हैव पोजीशन आइसोमर्स. Position isomers which arises due to the difference in the position of the functional group, which arises due to the difference in the position of the functional group, arises due to the difference in the position of functional groups. बेटा डेफिनेशंस तो नहीं एग्जाम में असेस की जानी. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि पोजीशन चेंज करनी है हमने. फॉर एग्जांपल यू हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास. दिस इज 1 ब्यूटीन, दिस कार्बन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, दिस वन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन, दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इज हैविंग 3 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को मैं यहां पे शो नहीं कर रहा, ठीक है. आई एम जस्ट शोइंग the position change in this molecule and the other molecule जो कि इनके position isomers बन जाएंगे. alkene के double bond की position change कर दी जाए. 4 carbons लिखें, but now I am shifting this double bond over here. So बेटा this is called position isomerism. इसी तरह से alcohols. Alcohols में we have carbon carbon carbon, that is OH. OH is attached with the first carbon in this case. बेटा लेकिन अगर मैं ये OH सेकेंड कार्बन के साथ अटैच करवा दूं, what will happen? So बेटा this one is called 2-propanol. This one is 1-propanol. This one is 2-propanol. नेम भी चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज हो गई, ठीक है. Now we have different structure as well, but molecular formula is same. स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप की मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया. गॉट इट? सिमिलरली इफ यू हैव कीटोन्स या हैलोजिनो अल्केन्स, C एंड C, दैट इज हैविंग X, हैलोजिन है कोई भी, हैलोजिनो अल्केन्स हैं, सो जस्ट पोजीशन ऑफ X अगर मैं चेंज कर दूं तो इट अराइजेस पोजीशन आइसोमेरिज्म. Carbon, 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 carbon. So I am attaching halogen with the second carbon now. It becomes 2-halobutane. This one is 1-halobutane. ठीक हो गया? Halogen के लिए word use हो रहा है hello. ठीक हो गया? Similarly बेटा
कीटोन्स की अगर एग्जांपल को हम यूज करें तो इसी तरह से कीटोन्स भी शो होंगे. We have ketone group here. This one is 2-pentanone. अगर मैं यही CO group मूव करवा दूं यहां पे and it converts into this one, so beta that is called 3-pentanone. So position of functional group change किया, that arises position isomerism. So beta just आपके पास स्पेसिफिकली हैलोजेंस, हैलोजन के कंपाउंड, हैलोजिनो अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, कीटोन्स, एस्टर्स, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यहां पे आप रिलेशनशिप्स याद रखें, कुछ रिलेशंस. बेटा अगर एल्कीन है, एल्कीन is an isomer of cycloalkanes. Cycloalkanes, they are isomers. Alkene कोई भी लिख लें, that is C3H6. This carbon is having 3 hydrogens, this one is having 1, and this carbon is having 2 hydrogens. So total 3 carbons है और 6 hydrogens है. Cycloalkane अगर लिखें तो बेटा 3 कार्बन्स वाला ही लिखना होगा, like this. This is cycloalkane. This carbon is having 2 hydrogens. This one is 2. This one is having 2 hydrogens. So C3H6. So these both are functional group isomer. O levels में भी पढ़ते रहे, A levels में भी पढ़ते रहे, FSC में भी ये content पढ़ा isomerism का. So बेटा alkenes and cycloalkanes. Cycloalkanes आप organic compounds की classification में पढ़ चुके होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहां पे आप पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन्स. तो बेटा दिस इज नॉट एरोमेटिक, लेकिन आपके पास एलिसाइक्लिक हैं ये, ठीक है, क्लोज चेन रिंग में है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दिस वन. इसी तरह अगर हम साइक्लोएल्कीन्स की बात करें, बेटा साइक्लोएल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया and they are making a closed chain. So this carbon is having how many hydrogens? 1. This one is having 1 hydrogen and this carbon is having 2 hydrogens. So C 3 हो गए और hydrogens 4. That is having CnH2n minus 2, which is the general formula of alkynes. So बेटा जो alkynes होते हैं, alkynes are functional group isomers of cycloalkenes. Cycloalkenes. साइक्लोएल्कीन का मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया तो 3 कार्बन्स वाला एल्काइन भी लिखकर देख ले, C3H4 ही होएगा, ठीक है. So they would have same molecular formula but different structural formula, and they are having general formula CnH2n. Cycloalkanes and alkenes both are having this general formula. Alkynes and cycloalkenes are having this general formula. So बेटा relate करवाना है आपने. Now moving towards the next one. बेटा जितने भी कार्बोक्सिलिक we have कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कीटोन्स हैं या अल्कोहल्स हैं, इनके भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो आइसोमर्स होएगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. यहां पे पेयर स्कीम आपने याद रखनी है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आइसोमर्स ऑफ एस्टर्स. एक एक एग्जांपल इसकी लिखकर देखें जी. कार्बोक्सिलिक एसिड, टेक प्रोपानोइक एसिड, propanoic acid CH3 CH2 COOH, that is propanoic acid. अगर मैं मिथाइल एथेनोएट का फॉर्मूला लिखूं CH3O CO CH3, बेटा both are having same molecular formula. कितना molecular formula बन रहा है 3 कार्बन्स के लिए, CH3 CH2 C2H5 COOH. तो 3 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं.
CnH2n double or O2, they both are having this general formula. Esters का और carboxylic acids have this general formula. They are having same molecular formula but different structure. Carboxylic acid में COOH last में आता है and esters are having COO and both bonds are attached with the carbon chains. ठीक है, लेकिन carboxylic acid में CO और O अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ. सो बेटा दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यहां पे भी हमने एक पेयर को डिस्कस किया. इसी तरह से बेटा वी हैव अल्कोहल्स एंड ईथर. अल्कोहल्स एंड ईथर. बेटा ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है. ऑक्सीजन इज अटैच विद द कार्बन्स फ्रॉम बोथ साइड्स. तो बेटा जितने कार्बन्स हैं उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे. इफ वी हैव C2 सो विल हैव H6 और एक ऑक्सीजन CnH2n plus 2 and oxygen. This is the general formula of alcohols and ether. बेटा एक एक एग्जाम्पल खुद भी आपने इन तमाम की सॉल्व करनी है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मस्ट डू वन एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ. ठीक है. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट रिलेशनशिप. 1 2 3 4 रिलेशंस को हमने डिस्कस किया, 4 पेयर्स को डिस्कस किया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पेयर, दैट इज ketones and aldehydes. They both are isomers of each other. Ketones and aldehydes. Aldehydes and ketones both are isomers of each other. And this is the same phenomena which we always observed in the molecule जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है. They are disaccharides. उन दोनों में भी बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस आता है. ठीक है. एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल CH3COH. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, कीटोन्स कभी भी दो कार्बन्स वाले होते ही नहीं है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज इज प्रोपानॉन. CH3 दोनों साइड्स पे एंड CO इज इन द सेंटर. That is called propanon, 2-propanon. So बेटा कितने कार्बन्स हैं? 3. कितने हाइड्रोजन्स हैं? 6. How many oxygens? Only 1. So बेटा CnH2n and O. This is the general formula of ketones and aldehydes. दोनों का general formula same है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. ये जनरल फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस वन. सो दे आर शोइंग यू द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या है जी? अगर मेटामेरिज्म की हम बात करें, मेटामेरिज्म इफ वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप और उसके दोनों साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन चेन की. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of carbon chain on both sides of functional group arises metamerism. एक बिल्कुल सेंटर में है और एक सेंटर में ना हो. फॉर एग्जाम्पल बेटा we have to take those functional groups which are central functional groups. For example, आपके पास ether है, you have ethene, you have ketones, वो तमाम functional group जो कार्बन चेन के सेंटर में आते हैं. ठीक हो क्या? So I am using
3 एग्जांपल्स हियर. ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे वी हैव 2 कार्बन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइइथाइल ईथर. और अगर मैं यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं कार्बन चेन की दोनों साइड्स पे, ऑक्सीजन यहां पे आ जाए एंड we'll have 3 कार्बन्स ऑन वन साइड, 1 कार्बन ऑन वन साइड. सो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामेरिज्म. आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर ये पोजीशन आइसोमर्स है. यस, they are position isomers as well because we are shifting the position of the functional group. And which one is functional group? That is oxygen in this case. Oxygen is the functional group of ether. Ether है ये आपके पास. This is CH3, this is CH2, this is oxygen, this is CH2, this is CH3. In this case we have CH3 oxygen and on this side we have C3H7. Both have same molecular formula but different unequal distribution of the carbon, different arrangement है. That's why it is called structural isomer. ठीक है. और यहां पे ऑब्जर्व करो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप्स पे ही मुश्तमिल हैं. ठीक है. तो ईथर shows the phenomena of metamerism. Got it? Similarly कीटोन को आप देखो, आप यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे CO ग्रुप को रिप्लेस करवा दीजिए. कार्बन कार्बन CO कार्बन एंड कार्बन. सिमिलरली ये कीटोन की पोजीशन को आप चेंज करवाएं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाएं. दिस इज कार्बन, नाउ वी हैव कीटोन हियर, कार्बन कार्बन एंड कार्बन. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CO and now we have unequal distribution of carbon on both sides which arises metamerism. Beta these both molecules are metamers of each other. Got it? So आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दैट इज टॉटोमेरिज्म. दैट इज टॉटोमेरिज्म. सो बेटा टॉटोमेरिज्म में क्या होएगा? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स. विल शिफ्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप. हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाएगा. बेटा ए लेवल्स में आप लोग एग्जांपल पढ़ते हो अमीनो एसिड्स की. अमीनो एसिड्स में वी हैव अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप. एंड जो 2 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के, यहां पे हाइड्रोजन है एंड ऑन दिस साइड वी हैव कार्बन चेन alkyl. On one side we have an H2 group and on one side we have COOH. Acids have tendency to lose hydrogen ion and base have tendency to accept hydrogen ions. So बेटा यहां से अगर shifting हम show करवाएं, so it arises tautomerism. Hydrogen ion from acidic group it moves towards the basic group. और आपके पास क्या structure बनेगा अब यहां पे observe कीजिए. So it will arise tautomerism's phenomena. कैसे? This is R. It would remain same. This is carbon, this is hydrogen and it becomes COO negative and it becomes NH3 positive. और बेटा ये जो मुकम्मल आपके पास ग्रुप बन रहा है that is called zwitterine. And remember the question about zwitterine? It is acidic in nature as well as basic in nature. ठीक है? So it shows the amphoteric behavior. तो zwitterine बन जाता है. वापस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मूव करे और वापस अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो जाती है. अमीनो एसिड से zwitterine, zwitterine से अमीनो एसिड, zwitterine. So we have this type of isomerism जो कि shifting of proton से arise हो रही है, that is called as tautomerism. Example याद रखनी है अमीनो एसिड से zwitterine. Got it? So beta, now we have geometrical isomerism. Although we have two types, cis-trans and optical, but we are not going to discuss optical isomerism because that is not the content of MDCAT syllabus. So MDCAT syllabus में we have only cis-trans isomer जो कि A levels में भी आप लोग पढ़ चुके हैं and FSC content में भी just cis-trans isomers को ही reflect करवाया जाता है. बेटा cis-trans isomerism that is having same molecular formula and same structural formula. Structural isomerism में क्या होता था? We are having same molecular formula but different structural formula.
in geometrical isomerism, in cis trans isomerism, we are having same molecular formula as well as same structural formula. तो बेटा अगर molecular formula भी same है, structural formula भी same है, तो different क्या है? यहाँ पे arrangement of the atoms space में different होती है, 3D dimensions में, 3 dimensional जो arrangement है atoms की, that is different. ठीक है? Cis trans isomerism phenomena arises due to the 3-dimensional arrangement of the atoms, arrangement of atoms, जो कि ये different होती है, different arrangement of the atoms in 3-dimensional space, space में अगर different है तो बेटा तब cis trans isomerism का phenomena arise होता है. And it always show restricted rotation. बेटा all those compounds which show restricted rotation वो ही cis trans isomerism का phenomena show करेंगे. And remember, whenever carbon carbon double bond, ये मैं just FSC content की बात कर रहा हूँ या A levels content की बात कर रहा हूँ, whenever we will have carbon carbon double bond, so these molecules will show cis trans isomerism. लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स इनके भी नहीं, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है और उन कंडीशंस को हम डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. बेटा इफ वी हैव दीज 4 साइड्स, यहां से होनी है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. द फर्स्ट थिंग, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. जो कि एल्कीन्स शो करेंगे. एल्केन्स विल नॉट शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एल्काइंस भी नहीं शो करेंगे. एल्केन्स फ्री रोटेशन शो करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करता है. इन एल्कीन्स ओनली दिस साइड विल रोटेट, दिस साइड इज फिक्स्ड एंड ओनली दिस साइड इज रोटेटिंग. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है. और दिस साइड इज फिक्स्ड एंड दिस साइड इज ओनली रोटेटिंग. ऑलराइट. यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, द फर्स्ट थिंग, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो शो कर सके. एंड द सेकंड थिंग, दे मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स. ईच कार्बन इज हैविंग डिफरेंट ग्रुप अगर, तो बेटा तभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अराइज होएगा. अगर यहां पे ये कार्बन है, इफ वी विल हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन दिस साइड एंड CH3 and hydrogen on this side, beta it will not arise cis trans isomerisms phenomena because you can see same atoms on this carbon. अगर same atoms दोनों तरफ आ गए, so बेटा ये cis trans isomerism का phenomena show नहीं करेगा. स्पेस में डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है, डिफरेंट एटम्स का होना या डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है. डिफरेंट एटम्स or groups. So beta, which molecules will show cis trans isomerism? जो कि restricted rotation show करेंगे or which have different atoms or groups on each double bonded carbon. ठीक हो गया? So अगर मैं यहां पे observe करूं, this molecule can show cis trans isomerism or not? बेटा इस कार्बन को देखूं, डबल बॉन्डेड है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, यस इट कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. दूसरी कंडीशन को भी देखते हैं, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव CH3, दोनों डिफरेंट है. इस साइड से तो बिल्कुल ठीक है, इस साइड से ऑब्जर्व करते हैं, दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड, फर्स्ट कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई. वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव इथाइल ग्रुप, सो दीज बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट. दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप, हाइड्रोजन को भी ग्रुप कंसीडर कर ले. सो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस कैन शो cis trans isomerism. तो बेटा if मैं इनको कह रहा हूं diagonals, if diagonals are different, these type of molecules are called cis molecules. ठीक हो गया?
वो होंगे सिस। इफ डायगोनल्स आर सेम दे आर कॉल्ड ट्रांस, दे आर कॉल्ड ट्रांस। या अगर आप सिस की बात करते हो, इफ दीज साइड्स आर हैविंग सेम ग्रुप, तो बेटा वो कहलाएंगे सिस। अगर ये साइड्स डिफरेंट ग्रुप्स रखती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांस। ये आपने अपनी ईज के लिए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह से भी आप सिस ट्रांस को याद रखना चाहें। ठीक हो गया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? दैट इज 2 कार्बन्स, पेंटीन। कौन सा पेंटीन है? वी हैव 2 पेंटीन हियर, दैट इज सिस 2 पेंटीन, cis 2 pentene, and the name of this molecule is trans 2 pentene. नेमिंग भी याद रखनी है बेटा। we have hydrogen here and we have hydrogen here. तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। बेटा दे हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। ट्रांस का डायपोल मूवमेंट क्या होता है? दे हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर वीक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इफ दे हैव वीक मॉलिक्यूल्स तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होएगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They are less stable. They are less stable. If they are less stable, it means they are more reactive. They are more reactive. जो trans alkenes होंगे, they are more reactive. They are less stable. They have weak intermolecular forces. That's why they have low boiling point. Why this is so? Because they become non-polar. Why they are non-polar? Because they have zero dipole moment. Zero dipole moment क्यों होएगा? Because CH और CH एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया। Now we have CCH3 here and CC2H5 here. तो बेटा यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होएगी। We have different groups attached on these sides. ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होएगी। सो ये जो बॉन्ड्स हैं, इनकी वजह से नॉन पोलर नेचर यहां पे आ गई, लेकिन इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इट बिकम्स पोलर बिकॉज वी हैव C2H5 हियर एंड CH3 हियर। सो बेटा इसी के साथ साथ एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सिस एल्कीन्स होते हैं, सिस एल्कीन्स बेटा दे आर पोलर इन नेचर। दे आर polar in nature because they have some dipole moment. ठीक हो गया। और जो trans alkenes होते हैं, we have already discussed this concept in chemical bonding as well. chemical bonding में ये हम पढ़ चुके हैं। trans alkenes जो हैं, they are having zero dipole moment. उनका dipole moment zero होता है। That's why they are non-polar. And cis alkenes are not having zero dipole moment. इनका dipole moment zero नहीं होता, so that's why they are polar in nature. और अगर polar है तो बेटा we know polar have strong intermolecular forces. अगर intermolecular forces strong है, so they would have high boiling point. They are more stable. So बेटा cis alkenes are more stable. अगर stable ज्यादा है, so they are less reactive. Trans alkenes are less stable, but they are more reactive. They have low melting and boiling point. They have weak intermolecular forces. Trans alkenes की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। Due to the non-polar behavior. Got it? Because of the zero dipole moment. ये dipole moment की वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि cis और trans alkenes का डायपोल मूवमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, यू कैन ऑब्जर्व दैट वीडियो। अदरवाइज यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं बेटा, दैट इज मोर देन इनफ टू कवर योर MDCAT एग्जाम। MDCAT का ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, बेटा पहले वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इट इज डबल बॉन्डेड कार्बन, यस,
it has different groups as well, CH3, H, H and CH3. तो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना तो शो करेगा, but we have same group on both sides. This one is CH3 and this one is CH3. So this is trans 2-butene. This is trans 2-butene. That is not cis isomer. This is trans isomer. This is trans 2-butene. ठीक हो गया? So trans 2-butene is non-polar. It has zero dipole moment. It has less stability and more reactivity. Are you getting these points? So beta B option को देखते हैं. We have this B option. Yes. Carbon double bond मौजूद है. Hydrogen है. We have CH3. We have hydrogen and we have CH3. So this is having the different diagonals. तो बेटा ये हुआ cis 2-butene. This is cis 2-butene. This is trans 2-butene. That is polar in nature. It is not having zero dipole moment. ठीक है? It has some dipole moment. वो कोई भी वैल्यू होए, but it is not equivalent to zero. ठीक है? Polar है, strong intermolecular forces हैं, high boiling point है, और इसी वजह से high boiling point की वजह से it is more stable. Stability ज़्यादा है, so it is less reactive. ठीक हो गया? So this is cis isomer. ठीक है? आगे भी एग्जाम्पल को देखते हैं. We have CH3 डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई होती है, बट वी हैव सेम ग्रुप ऑन दीस बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन. बेटा रूल ऊपर बताया था, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, अदरवाइज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं होता. सो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो ही नहीं कर सकता. ठीक हो गया? अगेन यू कैन सी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ओवर हियर. सो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा. So we have B option, that is correct option for this MDCAT MCQ. So बेटा इसी तरह से हमने अपने तमाम आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स को कवर अप किया, structural isomerism and geometrical isomerism. If you have further queries or questions regarding any topic of isomerism, तो बेटा do let us know in the comment box. इंशाल्लाह आपकी queries को वहाँ पे आंसर भी कर दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स या अनक्लियर्ड कॉन्सेप्ट्स. प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी. मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स. अपने नोट्स खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक हो गया? तभी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज होएगी और आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. सो बेटा हमने तमाम एग्जाम्पल्स को कवर अप किया, तमाम क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म की हमने डिस्कस की. यहाँ पे डिफरेंट जो टाइप्स थी उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया. बेटा इन तमाम टॉपिक्स में से जो सबसे ज़्यादा मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज़ अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Sometimes this topic relates with the chemical bonding, dipole moment, polarities concept, reactivity or stability का concept. All those contents, all those points, all those techniques we discussed in this video. So बेटा उन तमाम points को highlight कर लीजिएगा और अपने लिए जिस तरह भी उसको conceptually strong कर सकते हो, do that thing. ठीक है? So दुआओं में याद रखिएगा. And if you have further question regarding isomerism, do let us know in the comment box.